السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. اس وقت آپ ٹیلی ویژن پہ ایک شاہکار دیکھ رہے ہیں عزیزی. بہت جلد آپ سلور سکرین پہ بھی دیکھیں گے اور بہت ہی انشاءاللہ وہ اچھی مووی آپ کو دیکھنے کو ملے گی. وہ شروع کر رہا ہوں میں بڑا جلدی اور فلم کا نام ہے عزیزی جٹ. اور اس فلم کی کاسٹ میں ہے عزیزی اور بہت سے عزیزی. یہ تو اپنی فلم کی فری پبلسٹی کر رہے ہو میرے شو میں. اس میں فری والی کون سی بات ہے؟ اخباروں میں نہیں خبریں آئی ہوتی کہ فلاں فلم بن رہی ہے، فلاں ایکٹر جو ہے اس نے اپنی فلم شروع کر دی ہے، تو میں اگر کہہ لوں گا تو پھر کیا ہے؟ تو پیسے کہاں سے لوگے اتنے فلم بنانے؟ پیسے نہیں اتنے میرے لگنے. بات ہو گئی ہے. کس سے؟ وہ ایک گراؤنڈ ہے ادھر، ہمارے باغ ہے بڑا اچھا، اس مالی سے بھی بات ہو گئی ہے، ادھر ہی باغ کے اندر ہی ساری بنانی ہے. اور کیمرہ بھی وہ والا نہ سمجھو، وہ جو جس میں 12 من کی تو بن دے شاہی قلعہ دیکھ، وہ نہیں کیمرہ. اصلی کیمرہ مووی والا. شادیوں کی مووی بناتا ہے ایک میرا دوست، اس نے کہا میں کیمرہ لے کے آ جاؤں گا. آسکر تو پھر پکا ہے تمہارا؟ آسکر نہ ملے آس تو ہوگی نا فلم لگنے کی. یا اور تھوڑی بنی ہوئی ہے ماجو اور پولا سنیارا اور کالو شاہ پوریا اور مولا جٹ، وہ آسکر کے لیے بنی ہوئی ہے. سر عزیز آپ کی فلم چل جائے گی جیسے باقی ساری چل رہی ہیں؟ چلے گی کیوں نہیں، انشاءاللہ دیکھنا. تم ابھی تو میں عزیزی جٹ بنا رہا ہوں نا، پھر اگلی فلم بنا رہا ہوں عزیزی کٹ، پھر اس سے اگلی بنا رہا ہوں عزیزی ود. یہ 6 ملین ٹائپ سیریز جائے گی. اس کے بعد اگلی فلم ہوگی عزیزی کٹ ود. اور میں نے ہر ایکٹر کو کہنا کہ کتنے پیسے، اس نے کہنا اتنے، میں نے کہنا یار کٹ ود کر لے. سر ابھی کچھ روز پہلے ایک امریکن ڈائریکٹر ہے فلیڈلفیا میں، اس کو اریسٹ کر لیا ہے. وہ ہٹلر کی لائف پر اور ہولوکاسٹ پہ ایک فلم بنا رہا تھا، پلان کر رہا تھا انفیکٹ، تو اس کو اریسٹ کر دیا انہوں نے. تو یہ چھوٹا جرم تھا اس کا، ہولوکاسٹ پہ فلم بنا رہا تھا. سر امریکہ جیسا ملک جو اظہار رائے کا چیمپئن ہے. اظہار رائے اپنی جگہ، لیکن امریکی اور یورپی قوانین اپنی جگہ. ان کے نزدیک ہر جرم قابل معافی ہے، لیکن ہولوکاسٹ پہ بات کرنا یہ ناقابل معافی جرم ہے. یہ ہو ہے کیا ہے جی؟ ہولوکاسٹ یار میں پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں، جو یہودیوں کا ایک واویلا ہے کہ ان کے دوسری جنگ عظیم میں 60 لاکھ سے زیادہ یہودی مارے گئے تھے. ہاں تم نے بتایا تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس پر بات نہ کی جائے، اور پورے تقریباً یورپ کے 16 ملکوں میں یہ باقاعدہ ان کے قانون میں یہ بات ہے کہ آپ ہولوکاسٹ پر نہ کوئی ریسرچ کر سکتے ہیں، نہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، اور کسی بھی بات کسی بھی انداز میں اس پر بات کرنا ہی منع ہے. مطلب جو انہوں نے کہہ دیا وہی ٹھیک. بالکل. بلکہ ان میں سے کئی ملک تو ایسے ہیں جن کے قانون میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کو بھی چیلنج کرتا ہے کہ جناب 60 لاکھ یہودی نہیں مارے گئے تھے ہولوکاسٹ میں، مرنے والوں کی تعداد کچھ کم تھی، یعنی اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی 59 لاکھ یہودی مارے گئے تھے، تو بھی وہ قابل گرفت ہے. اس کے خلاف بھی اتنی سخت کاروائی ہوگی جو ہولوکاسٹ کے خلاف یعنی کھلے عام بات کرے گا. یعنی اظہار رائے پہ مکمل پابندی ہے. بالکل. اور پھر اس سے تو اچھے ہمیں ہیں. دیکھو ادھر عزیزی جیسی شخصیات کے لوگوں نے ٹیلی فونوں پہ لطیفے بنائے ہوئے. اچھا جی، یہ انہوں نے پوری گنتی فکس کی ہوئی ہے کہ 60 لاکھ یہودی تھا؟ اتنی تعداد میں تو ایک کدی لاش چلو کدھر کو پھٹے تلے بھی ہو جاتی ہے. اتنا کون سا انہوں نے گن کے ایک ناگ پورا کیا تھا جی 60 لاکھ. لگتا تو یہی ہے کہ انہوں نے اس کو اپنی انا اور عزت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. اس کی تعداد کون سی ایسی متبرک چیز ہے جس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، اس پہ آپ ریسرچ نہیں کر سکتے یار. اور یہ سارے وہ ملک ہیں جو مطلب آزادی اظہار کے چیمپئن بنتے ہیں، باقاعدہ چھوٹی چھوٹی بات کو ایشو بنا کے وہ باقی اگر کسی اور ملک میں ایسی کوئی حرکت ہو جائے، کسی پر پابندی لگا دی جائے، تو وہ فوراً واویلا کھڑا کر دیتے ہیں اور آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. اور خود ان کے ہاں اس طرح کے قوانین ہیں. تم اسرائیل کے اندر دیکھ لو، وہاں پر یہ قانون موجود ہے کہ کوئی شخص بھی، اسرائیل کے اندر تو دور کی بات ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر کوئی شخص ہولوکاسٹ کو چیلنج کرتا ہے، اور اس میں بھی اس قانون میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر 60 لاکھ کی تعداد کو بھی چیلنج کرتا ہے تو اسرائیل اس ملک سے اس شخص کی حوالگی کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور حوالگی سے انکار پر اس ملک کے خلاف
कोई भी कार्रवाई कर सकता है। ये बाकायदा इजराइल की पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कानून मौजूद है। बहुत अच्छे, इसका तो डॉक्टर टणकने वाला साहब है। हमारे पिंड में एक डॉक्टर टणकना होता था, इतनी बड़ी खीर की प्लेट पास रख के खा रहा होता था और हर मरीज को कहता जाता था चीनी छाड़ दे, चीनी छाड़ दे, शुगर हो जाएगी, चीनी छाड़ दे, छाड़ दे चीनी छाड़ दे। चीनी ਇਹਦੇ ਚ ਵੇਖੋ ਘੱਟ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ चीनी छाड़ दे। एग्जैक्टली बिल्कुल इसी दर्जे की मुनाफिकत है यार। नहीं तो ये जो मुल्क इस तरह की सख्ती कर रहे हैं सर, ये छोटे से इशू पे, फजूल से इशू पे, इनको जब ये कुरान पाक जलाए जाते हैं उधर, अल्लाह माफ करे, इनको वो नहीं नजर आता कि कितने अरब लोगों की दिल आजारी हो रही है, तकलीफ पहुंच रही है उनको। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाते हैं उधर, नौज़ बिल्ला, इनको वो नजर नहीं आता, इनको हॉलोकॉस्ट ही नजर आ रहा है। हॉलोकॉस्ट के मसले पे सबसे ज्यादा जिस शख्स ने तहकीकी काम किया है वो कनाडा में रह के उसने किया था, अर्नेस्ट ज़ेंडल ने। उसने किसी शख्सियत को या किसी फिनोमिना को हद तक या तौहीन का उसने निशाना नहीं बनाया था, बाकायदा साइंसी बुनियादों पर काम किया था। लेकिन उसने ये चैलेंज किया था कि जिन इलाकों में गैस चैम्बर्स का जिक्र किया गया है वहां पर गैस का वजूद तक नहीं था, और उसने और भी बाकायदा उन सारी जगहों का हवाला देकर इस सारे वाक़े को चैलेंज किया था कि बहुत सारे मामलात में मुबालगा अमेजी से काम लिया गया। उसकी सजा उसको ये भुगतना पड़ी कि अपनी जिंदगी में वो 3 या 4 दफा गिरफ्तार हुआ और आखिरकार उसको 2010 में रिहाई मिली है, और अभी भी वो पूरी इस्तेकामत और हिम्मत के साथ इस मौजू पर काम कर रहा है। और उसका कहना यही है कि इस सारे वाक़े में बहुत सारी बातें हकीकत से ज्यादा अफसाने पर मबनी है। नहीं जी नहीं, कोई नहीं पूछता इनसे, खास तौर पे ये अमेरिका और इजराइल से कोई बात नहीं कर सकता, जरूरत ही किसी की नहीं। इनसे तो सारी दुनिया ऐसे डरती है जैसे हम यहाँ पे कोई मस्कीन आदमी, पेंडू बंदा हमारी पुलिस से नहीं डरता। वो बस में एक बंदा बैठा होता ना, साथ वाले को कहता है भाई जी तुसी पुलिस विच हो, कहते नहीं जी। आपके अब्बा जी पुलिस में है, वो कहता नहीं जी। को भैना भरा विचों कोई हमसाया पुलिस में, वो कहता नहीं जी। तो कहता फिर मेरे पैर से पैर तो उठा लो यार। नाज़रीन, वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। हमें तो इसी तरह डर लगा होता है कि तगड़ा बंदा ही ना आगे से निकला है, कुटना ही नहीं शुरू कर दे। अजीज साहब, आज शेख रशीद के बयान से शुरू करते हैं। नेकी और पूछ पूछ। अच्छा जी, शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं सियासतदानों के बच्चे सियासतदानों से ज्यादा बड़े डाकू हैं। हाय 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 हाय, देखो यार शेख साहब के दुख देखो यार। सही कह रहे हैं यार, आजकल के बच्चों को इतनी भी अकल शर्म नहीं रह गई हुई कि बड़ों से आगे नहीं बढ़ते। ये ख्याल ही नहीं इनको होता है कि बड़ा जा रहा है यार, राम राम से उसको जाने दो, जरूर दौड़ के आगे लगना है तुमने। ये बच्चों को कौन समझाए कि बड़े भी तुम्हारे लिए इकट्ठा कर रहे हैं, उन्होंने कोई साथ थोड़ी ना ले जाना। सब्र कर लो, सब्र कर लो, बहुत लौट रहे हैं, आराम से खाओ, कोई बात नहीं। इसलिए शेख साहब ने शादी नहीं की, वो अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते किसी। हद हो गई है यार, इन बच्चों को शर्म ही नहीं रह गई। परवेज मुशर्रफ का कहना है कि मुकदमात रास्ता नहीं रोक सकते, मैं पाकिस्तान जरूर आऊंगा। शाबाश मुशर्रफ साहब, खुदा के वास्ते ये बार बार जुमला ना कहा करें। जनाब कोई कबूलियत की घड़ी भी होती है, ये ना हो कि किसी दिन रात को आप लंदन में सोएं और सवेरे लाहौर हाई कोर्ट में आंख खोले और सिपाही आपको कह रहे हो कि हजूर अब आई पड़ गई है, चले क्या कर रहे हैं, और आप उनसे कह रहे हो कि ठहर जाओ यार, शेर अफगन नहीं पहुंचा अभी तक, पता नहीं किधर चला गया ये। और चौरी फवाद पास से कहे कि जी उनका फोन आ गया, वो कहते हैं कि मुझे डॉक्टर ने कहा हुआ जहां ज्यादा वकील हो वहां नहीं जाना। इतने में अंदर से आवाज आए मुशर्रफ वगैरह हायर हो, साथ ही फवाद चौरी कह लो जी मुशर्रफ साहब, उन्होंने वगैरह भी कह दिया, मुझे इजाजत दे। अदालत कहे कि जनाब कहें, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आप शुरू हो जाए। जो भी कहूंगी मैं सच कहूंगी, सच दे सिवा मैं कुछ ना कहूंगी। जिस दिन तू फेरी में तो अख सजना, मैं भी ना जूंदी रवांगी। जो भी कहूंगी मैं सच कहूंगी। वकील इस्तगासा कहे जनाब सारे मुकदमे आपके सामने हैं, कहां से शुरू करें? आप कहे जी सारे गामा से शुरू करें। मलका बरतानिया
सानिया के शौहर प्रिंस फिलिप को 90वीं सालगिरह पर हेडफोन्स का तोहफा दिया गया। मैंने कहा तुम्हारे काम आएगा फिलिप, हेडफोन रखो पास अपने, आवाज नहीं सुनता मेरी, कितनी कितनी देर मैं चीखती रहती हूँ, सुनता ही नहीं, बच्चे सुन के उठ जाते हैं, ये नहीं सुनता, अपने काम की बात सुन लेता है, मेरे काम की नहीं सुनता। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आवाज मारी, मैंने कहा फिलिप, मैं फिलिपो, इधर आ, मुझे खमीरा काजबान पकड़ा, मेरा दिल काट रहा है। अच्छा। तो मुझे कहते हैं खमीरे काजबान को दफा करो जानू, मैं वैसे ही तुम्हारा दिल लगा देता हूँ। तो मेरे सामने बैठ के शुरू हो गया, अभी शुरू ही हुआ, मेरा दिल भी नहीं लगा तो भीड़ नीचे गिर गया इसका। मैंने कहा को अक्ल कर, अभी महीना पहले तुझे 250 पाउंड का बिल लगवा के दिया है, तुम नीचे गिरा रहे हो। अब मेरे पास पैसे नहीं होते, सारे शहजादियों की शादियां हो गई हैं, वो अपने घरों के खर्चे पूरे करें या तुम्हारी मरम्मत कराते फिरे। उतरा सारा ही टूट भज गया। पेट्रोल की किल्लत शदीद, सार्फिन ख्वार, कई शहरों में 160 रुपए लीटर तक फरोख्त होता रहा। हाय 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 यार, ईमान से पेट्रोल की तो बड़ी बुरी हालत हो गई हुई है यार। ये हुक्मरानों को नजर नहीं आता, ये को अलहदा पेट्रोल पंपों से पेट्रोल डलवाते हैं या इनकी टैंकियां वैसे ही फुल रहती हैं। हुक्मरान खुद पेट्रोल डलवाते हैं यार। ईमान से ये जब से किल्लत शुरू हुई है ना पेट्रोल की, जितनी मेहनत से बंदा पेट्रोल डलवाता है ना, उससे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत और कर ले तो जमीन के नीचे से निकाल ले। यार तुम हंस रहे हो, मेरा हमसाया मुझे चंद दिन पहले मिला, शेव शूम की हुई, बड़ा स्मार्ट होके फिर रहा था। अभी कल मैंने उसे देखा है दाढ़ी रखी हुई उसने, मैंने कहा यार मुबारक को दाढ़ी रख लिया। कहता नहीं यार दाढ़ी नहीं रखी, पेट्रोल की लाइन में लग गया था, शेव कराने का मौका ही नहीं मिला। अब तो लोग कोई ना कोई साथ बच्चा लेके जाते हैं पेट्रोल डलवाने के, बेटा अगर मैं फौत हो गया तो तुमने पेट्रोल डलवा के आना है मेरा बेटा, और अगर मिल जाए पेट्रोल तो मेरी कवर पे अर्के गुलाब की जगह थोड़ा सा पेट्रोल ही छिड़क दे, ताकि मुझे ये टेंशन तो खत्म हो जाए कि मेरे बच्चों को पेट्रोल मिला कि नहीं। इतनी इतनी लंबी लाइन यार। एक मेरा दोस्त घर से निकला पेट्रोल डलवाने के लिए, तो दरवाजे के आगे गाड़ी में खड़ा था, उसकी बीवी ने अंदर से निकल के कहा कि जाते नहीं किधर क्यों खड़े हो, पेट्रोल पंप पे जाओ। कहता पेट्रोल पंप पे ही खड़ा हूं, लाइन में लगा हुआ। घर से पेट्रोल पंप तक लाएंगे। 160 रुपये किलो यार, देसी पेट्रोल बेच रही है। आजकल मेरी गाड़ी देसी पेट्रोल पी रही है, बड़ी तगड़ी हुई है। भारतीय वजीर दिफा A.K. एंटनी ने कहा है कि पाकिस्तानी एटमी हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग सकते हैं। क्या भाई शेख भाई जी, ये हमारा बम है, कोई एटमी गलेल नहीं बनाई जनाब, ये एटम बम है, कोई टांगे का बम नहीं है, या वो वाला बम नहीं है, बम छिक बम छिक बम छिक बम छिक, ओ बम छिक बम छिक बम छिक बम छिक। ये पाकिस्तान का एटम बम है जनाब, आपका बम नहीं है जिसे 4 तुप्पे पड़े तो टमाटर की तरह पानी छोड़ देते। फिर पास बैठे हुए एटम बम बेचारे आपस में बातें कर रहे होते कि यार भाई जन चंगे भले थे, पता नहीं क्या हुआ है। शनाख्ती कार्ड भी बनवा लिया था एटम बम के तौर पे, कार्ड भी देखना नसीब नहीं हुआ, पे पे ही बेचारों का अंतिम संस्कार हो गया। यार इनको छोड़ो, कहीं हमारे साथ भी यही ना हो। हद हो गई यार, ये कहा किसने है, ये कौन भाई साहब है? श्री A.K. एंटनी वहां के रक्षा मंत्री हैं। अच्छा रक्षा मंत्री है, मैंने कहा किसी सियाने बंदे ने कहा रक्षा चलाता है, छोड़ो यार। नाज़रीन यहाँ पे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। हंसने वाली बात नहीं, कोई तगड़ा बंदा बात करे तो बंदा उसका जवाब देता है, रक्षियों वालों की बात का जवाब नहीं देते। यार वैसे पा जुनैद, जो बेगमात अपने खामन से लड़ती रहती है ना, बहुत बुरी बात है यार। इस पे मेरा ख्याल है कि हर हफ्ते में 2 प्रोग्राम किया करो। क्यों आज इतना टची क्यों तुम इस हवाले से? बस यार किसी वक्त पर जाए तुम्हारी लड़ती है तो मैं भी आगे से गुस्सा कर जाता हूँ। अच्छा
हाँ, वंस मून ए ब्लू फ्लाई। वंस इन अ ब्लू मून कहना चाह हाँ, रहा हूं। वही। तो उसमें यार फिर बच्चे जो है ना वो मुंह बांट के बैठ जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं। बच्चा, आखिरी बार ये सानिया कब पेश आया है कि तुम भी गुस्सा कर गए? कोई कई दफा ऐसे हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये लास्ट टाइम 2001 में मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं गुस्सा कर गया था आगे। तो बच्चे जो है ना वो मुंह वट के बैठ जाते हैं, उनकी तबीयत एकदम बदल जाती है, वो नाराज से हो जाते हैं, सैड से बेचारों के रंग पीले हो जाते हैं। तो ये बहुत बुरी बात है वैसे। नहीं, वाकई ऑन द सीरियस नोट, जब घरों में मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं तो वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि उनके बच्चे भी वहां मौजूद हैं और वो उनको बहुत गौर से उनके रवैये को देख रहे हैं और उनसे असर ले रहे हैं। हम बिल्कुल भूल जाते हैं और इतने खौफनाक असरात मुरतब होते हैं बच्चों की साइकी पर माँ बाप के दरमियान नाचाकी के, कि आम तौर पर माँ बाप को इसका बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये जाहिल घरों में ऐसा होता है। नहीं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े मॉडर्न घर जो हैं उनमें भी तड़ातड़ यही हो रहा है। मॉडर्न घरों में ये ज्यादा है। वहां के माँ बाप, मॉडर्न जो माँ बाप है, वो तो ये समझते हैं कि बच्चों से कोई चीज नहीं छुपानी चाहिए। अगर हम मियाँ बीवी के दरमियान कोई इख्तलाफ है तो वो बच्चों को उसमें शामिल होना चाहिए, बच्चों के साथ ये बात भी शेयर करनी चाहिए। और एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचते कि बच्चों की शख्सियत इतनी मुतासिर हो रही है सबसे। हाँ बिल्कुल। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक बच्चा 18 माह की उम्र से अपनी याददाश्त बाकायदा तौर पर मुरतब करना शुरू कर देता है, और अगर इस एज में वो अपने माँ बाप को लड़ता हुआ देखते हैं, या अपनी माँ की बेइज्जती होता हुआ देखते हैं, या अपने बाप की समझते हो ना तुम, तो उस मामले में भी वो जो छोटा बच्चा है वो यानी क्या इंप्रेशन लेके बड़ा होता है, जब वो बड़ा होता चला जाता है तो उसके ज़हन में एक तस्वीर जो है वो बिल्कुल यानी सब तो हो चुकी होती है, उसी तस्वुर के साथ वो बड़ा होता है। तो कोई अच्छी तस्वीर लेकर बड़ा नहीं होता वो। ये जो तुमने कहा, समझते हो ना तुम ये कहना चाह रहे थे कि बाप की बेइज्जती होते हुए बिल्कुल मैं कुछ भी नहीं कहना चाह रहा था यार। चलो थैंक यू। नहीं, खुदा ना खास्ता, मैं क्यों कहूंगा। वैसे मैंने ये देखा जो पढ़े लिखे वालिदैन है ना वो ही बस इस बात का ख्याल रखते हैं। वो जैसे देख लो तुम, मेरा भाई जितनी मर्जी मार खा रहा हो हंसता है आगे से, कह के लगाता है कि बच्चों पर बुरा असर ना पड़े। ये अपने आप को मारना पड़ता है बच्चों को, बच्चों की ग्रोथ को वेल डेवलप। यार फजूल बात कर, इंतहाई सीरियस बात कर रहा हूँ मैं। तुम यार मैं भी सीरियस ही बता रहा हूँ, मैं मजाक तो नहीं कर रहा। मैंने तुम्हें क्या कहा है? नहीं मैं कुछ नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ तो सरियन बदला ले रहा हूँ यार, तुम्हारी मैं मिसाल, अच्छी मिसाल दे रहा हूँ। वेल डन, वेरी गुड। इसी तरह होना चाहिए, फैंटी की आगे कह ही लगानी चाहिए। यार मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ कि बाकायदा ये भी जो साइकोलॉजिस्ट है, यकीन करो कि वो एडवाइस करते हैं पेरेंट्स को कि अगर आपके दरमियान कोई इख्तलाफात मौजूद भी हैं तो बच्चों के सामने उसका इजहार ना करें। इवन ये भी कहा जाता है कि अगर आपके दरमियान कोई बहुत ज्यादा मोहब्बत नहीं है तो बच्चों के सामने मोहब्बत का इजहार जरूर करें। अच्छा, ये साइकोलॉजिस्ट के कहने पे तुम ये हरकत करते हो कि और मारो और मारो, मुझे नहीं पता मैं क्या गलती कर बैठा हूँ, मुझे माफ कर दो यार। वैसे मैं भी वाकई ऑन द सीरियस नोट कह रहा हूँ कि ये वाकई बहुत बुरी बात है। बच्चों की शख्सियत बिल्कुल डैमेज हो जाती है, वो बेचारे घबराए, कॉन्फिडेंस ही उनमें नहीं रहता। एग्जैक्टली, ये आई वाज अबाउट टू से कि वो बच्चों की पर्सनैलिटी। व्हाट आर यू सेइंग? मैं यही कहने वाली थी जो आपने अल्फाज कहे कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। ओके, नो प्रॉब्लम। अजीज साहब, आपको पता है जिन माँ बाप के दरमियान तलाक हो जाती है उनके बच्चों के अंदर जो सीखने और समझने की सलाहियत है वो 49 to 55% कम हो जाती है। नहीं, ये तो खैर अल्लाह पाक हर एक को खैर खैरियत से रखे। ये तो बहुत ही बड़ा जुल्म है, ये तो घर तबाह करने वाली बात हो जाती है। लड़ाई झगड़े की बात तक भी मैं तो समझता हूँ कि बहुत खतरनाक सिचुएशन है ये। ऐसे नहीं करना चाहिए, जुनैद सलीम को फॉलो करना चाहिए। अजीजा, वैसे इसी रिसर्च में उन पेरेंट्स का भी जिक्र है जिनकी आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं ना, उनके बच्चों की जो सीखने समझने की सलाहियत है ना वो 34 to 42% कम हो जाती है। यार सीखना सिखाना क्या, बेड़ा गर्क हो जाता है बच्चों की तालीम का। स्कूल से लेट होना शुरू हो जाते हैं, स्कूल से घर आते हुए घबरा रहे होते हैं कि फिर वही अजाब सामने नजर आएगा। मत मारी जाती है बच्चों की बेचारों की। वो किताब आगे खोल के तो सोच ये रहे होते हैं कि ये हमारे माँ बाप कब तक ये जंग करते रहेंगे। बिल्कुल सही। बच्चे बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, उनकी सारी शख्सियत मसक होकर रह जाती है। यार मैं समझता हूँ उन बेचारों के बिल्कुल जिंदगी खराब हो जाती है, शरारतें खत्म हो जाती हैं उनकी। हंसने खेलने की जो एक्टिविटी होती है बच्चों की वो मार ही देते हैं माँ बाप ऐसे जो आपस में लड़ते रहते हैं। घर में को प्राहुणा आ जाए, बच्चे शर्मिंदा फिर रहे होते हैं कि इनको पता चलेगा अब कि हमारे माँ बाप किस तरह के हैं।
स्कूल में बच्चे दूसरे अपने दोस्तों के सामने बेचारे एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं ऑब्वियसली। और सबसे बड़ा अजाब ऐसे घरों में बच्चों को ये पड़ा होता है कि अगर माँ की हिमायत कर दे तो प्यो दुश्मन हो जाता है कि तुम अपनी माँ का बड़ा साथ देते हो, अगर बाप की हिमायत कर दे तो माँ बेचारी कहना शुरू हो जाती है कि तुम तो प्यो के सके हो, मेरे तो है ही नहीं तुम। अजीब मंजर होता है ऐसे घरों में कि बजाय कि बच्चों की लड़ाई में माँ बाप उनकी सुलह करवा रहे हो, ये देखने में आता है कि माँ बाप की लड़ाई में बच्चे बेचारे सालिस बने होते हैं। नहीं भाई जी, 100 गज रसाते सिरे ते गंढ, अल्लाह जानता है ये भाजनाद की तरह बेइज्जती करा लेनी चाहिए, चुप करके खामोश हो के बच्चों का सोचना चाहिए, बड़ी बुरी बात। मैं एक खास वजह से आज चुप हूं और अब मैं चुप नहीं रहूंगा। खास यही वजह है ना कि यार इसको किस तरह ये सारी बातें कौन बता देता है। मेरा को हमसाया इसका वाकफ है या मेरे ससुर का क्लास फेल हो रहा है, ये कैसे इसे पता चलता है। नाज़रीन, ये एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। इसी बात पे हो ना तो जब मैं यार आज अदब पारे में थोड़ी सी सीरियसनेस दरकार है। अच्छा जी। ठीक है, मैं तुम्हें लफ्ज फकीर के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। अच्छा जी। ठीक है? नहीं, ये तो तुम तंजिया कह रहे हो, मुझे सीरियस तो नहीं लग रहा है। अच्छा जी। स्टिल आई एम फीलिंग टायर्ड। अच्छा जी। इसका मतलब तुमने सीरियस नहीं होना। नहीं चलो ऐसे कर लेते। अच्छा जी। ये तो सीरियस है। इसका मतलब है इन्होंने कुछ तैयार ये तो किया बंदा हुआ है। बहुत सीरियस हो तो ऐसे करता है। नहीं, मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं कि हम लफ्ज फकीर का बेदरेग अंदाज में इंतहाई गलत इस्तेमाल करते हैं। या तो हम उसको डेरोगेटरी उसका मतलब निकालते हैं, या हम बिल्कुल उसको आमियाना अंदाज में कह देते हैं यार मैं तो फकीर आदमी हूं, मैं तो फकीर आदमी हूं। डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर साहब, बाबाए पंजाबी, उन्होंने इंतहाई खूबसूरत लफ्जों में लफ्ज फकीर को डिफाइन किया है, वो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। अच्छा जी। डॉक्टर साहब ने मियां अहमद दीन के नाम जो उनके मकतूब हैं उनमें और भी बहुत जबरदस्त दानाई की बातें हैं, लेकिन जो लफ्ज फकीर को डिफाइन किया है डॉक्टर साहब उसमें लिखते हैं फकीर वो होता है जो अपनी जात से फानी और खुदा के साथ बाकी हो और तबाए से आजाद और हकीकतुल हकायक से वासिल हो। फकीर वो है जो खुदा के सिवा किसी दूसरे की तरफ मतवज्जो ना हो और उसको सिवाय खुदा के कोई दूसरा ना जानता हो। फकीर उसको कहते हैं जिसको अल्लाह ताला उसके हजूज़े नफसानी से मार डाले और अपने मुशाहिदे के साथ बाकी रखे। फकीर वो है जो मिसले ज़मीन के आजिज हो और हमेशा कौले हक कहे और जब खामोश हो तो उसका फेल फ़क्र पर दलालत करे और जब ना पाए तो चुप रहे, जब पाए तो उससे दूसरों को तरजीह दे, बंदे तबीयत से आज़ाद हो और हकीकत से पैवस्ता हो, उलमा के सामने ज़बान की मुहाफ़िज़त करे और सलातीन के आगे निगाह की, औलिया के सामने दिल की, इसे कहते हैं फकीर। आहा, ठहर फकीरा कालिया फोली ऐब किसे दे फेर, पहले अपनी मंजी हेठा जरा डंगोरी फेर। ये भी डॉक्टर साहब का ही है। आज आपने शायरी में क्या पकाया है जनाब? क्या सुनना है? वो खरी खरी सुना दो। पुछ तो ऐसे रहे हो जैसे बंदा कहता नहीं है मेरे से कुछ सुन ना लेना। मेरा मतलब है किसकी शायरी सुननी है? यार किसी की सुना दो यार, दिलचस्प करके। मौसम की मुनासबत से मैं तुम्हें कतील शफाई सुना देता हूँ। अरशाद। कतील कहते हैं अपने होंठों पे सजाना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। हाय। कोई आंसू तेरे दामन पे गिरा कर बूंद को मोती बनाना चाहता हूँ। बढ़ गई इस हद तलक बेतमादी, तुझको तुझसे भी छुपाना चाहता हूँ। थक गया मैं करते करते याद तुझको, अब तुझे मैं याद आना चाहता हूँ। हाय हाय। जो बना बाइस मेरी नाकामियों का, मैं उसी के काम आना चाहता हूँ। छा रहा है सारी बस्ती पर अंधेरा, रोशनी को घर जलाना चाहता हूँ। छा रहा है सारी बस्ती पर अंधेरा, रोशनी को घर जलाना चाहता हूँ। फूल से पैकर तो निकले बेमुरव्वत, पत्थरों को आजमाना चाहता हूँ। रह गई थी कुछ कमी रुसवाइयों में, फिर कतील उस दर पे जाना चाहता हूँ। हा, क्या प्यारी ख्वाहिशात हैं। वाह 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 वाह। अगर आप हुक्म करें, बल्कि अरशाद अरशाद जोर जोर से कहें, तो अय्यी भी आपको अपनी ख्वाहिशात मंजूम सुना सकता है।
कतील साहब को माफ रखना, बाकी इजाजत। कतील साहब यार बड़े लोग हैं, ये ना कह दिया करो बीच में, मैं कांपना शुरू हो जाता हूँ। मेरा मतलब है जो मेरी नज्म या गजल मैंने सुनाई हो उसका बेड़ा गर्क ना किया करो, बाकी जो मर्जी करो। यार वो तो हो गई है, उसके तो हम हवा उसके करीब से भी नहीं गुजर सकते। करना तुमने फिर उसी का ही बेड़ा गर्क है। ला जी, जमीन कतील शिफाई साहब की हुई है, फसल मेरी अपनी है, मुझे माफ कर दे। मैंने कहा था ना कि बात रह ही नहीं सकता। खाशाते अय्यी, मैं उसे इतना चढ़ाना चाहता हूँ, मैं उसे इतना चढ़ाना चाहता हूँ, फेंक कर पानी जगाना चाहता हूँ। डर है मारे न कहीं हम साए सुन के, वरना मैं भी ऊंचा गाना चाहता हूँ। डर है मारे न कहीं हम साए सुन के, वरना मैं भी ऊंचा गाना चाहता हूँ। थक गई गर्दन निकालो गोल तकिया, अब कोई छोटा सराहना चाहता हूँ। कोई शादी कार्ड मुझको दे तो सही, कितने दिन से खुल के खाना चाहता हूँ। हाय 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 जी तेरियां भुखा है। थक गया मैं ढूंढ कर पटराओ लब तो, आहा क्या हस्बे हाल है ये। थक गया मैं ढूंढ कर पटराओ अब तो, खड़े स्कूटर को लटाना चाहता हूं। थक गया मैं ढूंढ कर पेट्रोल अब तो, खड़े स्कूटर को लटाना चाहता हूं। मुंतजिर हूं मल के साबन आए पानी, 1.5 घंटे से नहाना चाहता हूं। बाद में दुड़की लगा दूंगा वहां से, पहले घर की बेल बजाना चाहता हूं। गौर कीजिए जरा, बस अजीजी की यही एक आरजू है, लाल जो निकले दुआना चाहता हूं। हाय हाय हाय, जेड़ा पन्नो लाल, जेड़ा पन्नो लाल, क्या शायरी है, जेड़ा पन्नो लाल। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा। क्या ये शायरी करता है, वक्फे करा देता है। ये अल्लाह तुझे माफ कर। अस्सलामुअलैकुम जोय साहब। तो बड़ी देर कर दिया जाते आते आपने। मैंने आपको मैसेज कर दिया था, टाइम बताया, मैंने मैसेज कर दिया। अच्छा मैसेज किया था, तो कॉल कर देते ना जोय साहब आप। मैंने सोचा कि आप मसरूफ आदमी हैं, आप कॉल नहीं सुनेंगे, मैसेज तो हर बंदा पढ़ लेता है ना जी। नहीं सॉरी, मैंने नहीं देखा आपका मैसेज। ये कैसे हो सकता है, मैसेज पढ़े बगैर तो बंदा रह ही नहीं सकता। एक बंदा इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकता, एक मैसेज के बगैर नहीं रह सकता। और मेरा मैसेज तो वैसे भी दोस्त खुशी से पढ़ते हैं, खुशबू वाला होता है। खुशबू वाला? मैं जब भी मैसेज करूँ ना जी, फोन के ऊपर लिखा हुआ आ जाता है सेंट मैसेज। खुशबू वाला मैसेज। अच्छा जोड़े मैसेजिंग को, इंटरव्यू मेरा ख्याल शुरू करें। करें शुरू जनाब, मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, मैं कौन सा उलामा देने आया हूँ। चलो बजट से बात शुरू करते हैं। बजट कैसा लगा आपको? बजट वफाक का बजट तो बहुत अच्छा था। हाँ वो तो नहीं था। ये पंजाब का बजट जो है ये जरा यरकान ज़्यादा है। जो सर पिछले साल आपने वफाकी बजट को भी तनकीद का निशाना बनाया था, इस साल आपको बहुत पसंद आया, इसलिए कि आप खुद हुकूमत में। नहीं हुकूमत में आने की बात नहीं है, वो पिछले साल मैंने बजट को दूर से देखा था, इसलिए वो अच्छा नहीं लगा मुझे। अच्छा। इस दफा पास जाके देखा तो मैं हैरान हो गया हूँ कि यार एडा अच्छा बजट बना देने। क्या अच्छा था उसमें जो साहब? भेड़ा की थी। नहीं अच्छा क्या था? भेड़ा की थी। नहीं अच्छा क्या था? मेरा ख्याल है इंजी ने इंटरव्यू मंगवानी है। भेड़ा की थी जो साहब ये तो फरमाए कि अच्छा क्या था। तो मैं भी वही कहने दिया, ये फरमाए कि भेड़ा की थी। जो साहब कोई एक बात तो बता दे जो अच्छी थी बजट में। बजट च गल्लां ते है ही नहीं सन, ओदे ते रेट दसे हन। अच्छा जो साहब पंजाब बजट में क्या बुराई थी? अच्छाई की थी। बुराई क्या थी? वो अच्छाई की थी।
जोसेफ को एक हाथ कोई तनकीद की, कोई बात तो बताए ना कि बुराई क्या थी, कमी क्या थी। यार तुम भी कोई एक आध अच्छाई को एक आध कोई ऐसी गल जो जिसमें बंदा खुश हो जाए को बता दो। जोसेफ उन्होंने येलो कैप स्कीम दोबारा शुरू की है। इन्ने सालों के बाद रंग नहीं जेड़े बदल सके उन्हें तरक्की की करनी जेड़े 14 साल बाद भी स्कीम का रंग ही नहीं बदल सके उन्होंने और की खुशी देनी आवाम नूं। नहीं जोसेफ इस दफा तो उन्होंने लाजमी करार दिया कि सिर्फ ग्रेजुएट्स को टैक्सियां मिलेंगी। लो पहले असैम्बली च जाने वास्ते बीए की शर्त सी, हुण टैक्सी च वड़न वास्ते बीए करो पहले। जिन्हें बीए नहीं किया उन्होंने टैक्सी नहीं मिलेगी। जिहदी कंपार्ट आ गई उहदे गड्डी चों स्टपनी ते प्लग पाना कढ लैणगे ते जिहदी पोजीशन अच्छी आ गई उन्होंने नाल व्हील कप भी देणगे। वैसे जोसेफ बीए की शर्त में बुराई क्या है? जाएगी है जी। नहीं बुराई क्या है? नहीं जाएगी नहीं, बुराई क्या है जोसेफ? यार जाएगी है भाई जी। आज हर बात पे आडा ही लगा रहे हो तुम। खैर मैं लगा रहा हूँ जोसेफ। ते और की मैनू तो सूफी ने आंदी ही कहता सी कि चौधरी साहब बाऊरा ने ऐनक बदली है जिन्हां दी नीयत भी बदली लगदी याद है ना बीए बड़े बंदे दी गड्डी तेज दौड़दी है तो फिर तो चलो ठीक है। ये ड्राइवर ने बीए किया हो तो गाड़ी पेट्रोल कम खाती है। तलीम का टैक्सी ड्राइवरी से क्या ताल्लुक है भाई जी? एक ये दानिश येलो कैब स्कीम तो नहीं है। अच्छा जोसेफ छोड़ेंगे, बताएं कि आपने कोई वफाकी हुकूमत को मशवरा दिया था बजट साजी में? सारा मशवरा ही मेरा होता है। क्या? मैंने हफीज नूं किया सी कुछ नहीं हुंदा पाड़ उठ के तू मेरे तो अगर ये मशवरों पे अमल शुरू कर दें तो इनको कर्जा लेने की भी जरूरत न पड़े। अच्छा। मैंने तो इनको कई दफा मशवरा दिया कि सर्दियों में बर्फ सस्ती होती है लेके स्टॉक कर लो, गर्मियों में फिर डबल रेट से बेचना। सुनता ही नहीं है बात। अच्छा मजाक छोड़े, ये फरमाएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बस इन्हां नूं आदत पई है समान नाल गल्लां करन दी। इन्हां दा औरतां नाल हिसाब हुंदा है, जिस तरह औरतां नहीं गल्लां करदियां रहिंदियां उस तरह इन्हां कीमतियां नूं भी आदत पई है एवें गल्लां करन दी। चौधरी परवेज साहब ने तो रमजान पैकेज भी बड़ा अच्छा तैयार किया है। अच्छा। उन्हें सूफी को पूछे सूफी दस भाई रमजान च केड़ियां केड़ियां चीजां दी लोड़ हुंदी? उन्हें कहा चौधरी साहब कुछ भी नहीं बस सबर दी लोड़ हुंदी। मैं परवेज साहब नूं कहा मैं परवेज साहब सबर ते सब्सिडी दियो। सबर ते सब्सिडी ज्यादा लोड़ ते सबर दी हुंदी है रमजान च। वैसे जो साहब असल बात तो यही है कि बजट ने लोगों की परेशानियों में इजाफा ही किया। बस लोगों को आदत पड़ गई है परेशान होने की। अच्छा। हालांकि शायर ने बहुत पहले कह दिया था कि बजट का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों साल भर नहीं आती। उसके बाद कोई तुक नहीं बनता परेशान होता। शायर एवं नहीं कहता कुछ भेजते तो कहता नहीं। एक शायर ते एक चौधरी कुछ उन्होंने नजर आवे ही तो बोलते ने एवं नहीं बोलते। अच्छा जो सब आखिर में क्रिकेट पे भी जरा बात हो जाए, शाहिद अफरीदी के बारे में क्या राय है आपकी? जो तनाज़ा उठ खड़ा हुआ रौला पांडे ये वही मुंडा ना जेड़ा सैमीफाइनल हार के आ गया रौला तो इंज पांडे जिवें हर बारी कप लैके आंदा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ फाइनल ਜਿੱਤਿਆ सामुल हक। जैसे वो टेनिस का प्लेयर है, क्रिकेट की बात हो रही है। ਉਹ ਯਾਰ ਮਾਰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਟੈਨਿਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਤਲਾਤ ਦੀ ਹੋਵੇ। वैसे जो शाहिद अफरीदी ने एहतजाज की है उसमें बुराई क्या है? छाएगी उसमें बुराई क्या है? यार छाएगी बुराई क्या है? जो भाई अज या रोटी मंगाओ तो या छाई मंगाओ। अज मैं पूछ के जाना जो छाएगी और रोटी भी दो बंदियां दी मंगाना, नाल सूफी भी आया है। नाज़रीन ये था आज का हस्बे-हाल। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।